गाइस, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक अनोखी कहानी जो कि आपको सुननी है ग्रूवी ब्रो की जुबानी। बैक टू माय चैनल ग्रूवी ब्रो एंड सेज। आई गेस तो आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा ही लिया होगा। वो मतलब अमेरिकन सुपरनैचुरल रोमांटिक टीवी सीरीज, दैट्स अ लॉन्ग नेम, डायरेक्टेड बाय केविन विलियमसन एंड जूली प्ले, बेस्ड ऑन द बुक द वैम्पायर डायरीज written by L.J. Smith. This show was first premiered on the CW in 2009 and concluded in 2017. Aired 171 episodes over 8 seasons. Now it is available on both the OTT platforms, Netflix as well as Prime Videos. The series starts in the fictional town of Mystic Falls, Virginia. Dear Diary. It follows the life of Elena Gilbert. यार ये लड़की ना पूरे शो में सब इसके पीछे, इसको बचाने में पड़े रहे। मतलब रियल सर्वाइवर दिखाई गई है, बट अभी आगे आपको हम बताएंगे कि रियल सर्वाइवर था। तो इट फॉलोज द लाइफ ऑफ एलिना गिलबर्ट AKA नीना डोबरे, 162-year-old vampire named Stephen Salvatore. Oh God, he is the James Bond of the series, like crazy man. Stephen's mysterious brother Damon Salvatore. Hello brother. आप लोग जानते होंगे, अगर देखा होगा किसी ने, नहीं देखा तो सिर्फ ये सेंटेंस के बाद आप लोग ना डेमन के फैन होने वाले। Who returns with a plan to bring back their past love, Catherine Pierce, also played by Nina Dobrev. ये डॉपलगैंगर, ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। Simple words, we can say that it is the refined version of movie Twilight. ओए ट्वाइलाइट नहीं, ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट मैन। Twilight तो देखी होगी आप लोगों ने, नहीं देखी? देखिएगा दोनों। A teenage girl meets a guy, falls in love with him, doesn't realize he is a vampire at first. मतलब पहले प्यार में गिर गई, बाद में पता चल रहा है कि वो वैम्पायर है। भाई साहब खून चूसते हैं, भाई साहब खून चूसते हैं। Believe me when I say, despite the parallels, pretty much everything that Twilight does wrong, the Vampire Diaries does much better. The main character Elena is extremely likable. I'm sorry to the Twilight fans. Some people that Bella in the books are slightly more likable, but in the movie she is just so selfish. Now we come back to our topic. Oh sorry. Previously on the Vampire Diaries. ये भी आप लोग बहुत बड़े फैन होने वाले हैं इस चीज के। So it started when Stephen took admission in the same school. क्या कहा भैया? स्कूल? 162 साल में अभी स्कूल जाएंगे? बुढ़ाऊ कुछ भी चलता है यहाँ पे। जाने भैया, सही कहे, हॉलीवुड में तो कुछ हो वास्ता है। And when Damon comes in play, he gets to know that Stephen is dating Elena, who looks familiar to Catherine. I have to know her. You must be Elena. I'm Damon, Stephen's brother. कैथरीन जो थी ना, उसके प्यार में दोनों पागल थे, स्टेफन भी और डेमन। धीरे धीरे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। In starting we see Damon as a bad guy vampire. Hello, brother. But as the season goes on, we get to know that Damon, hello brother, is also falling for the same girl, Elena Gilbert, making it a love triangle. Elena loves Stephen, Damon loves Elena. Stephen hates Damon. एक सेकंड, Stephen does not hate Damon. वो hate नहीं करता था, वो a bit guilty because he forced Damon to turn into a vampire. Something about Stephen and Damon, Salvatore's brother. But from 18th century and before turning into a vampire, they were normal human beings and living a normal life before they fell in love with Catherine Pierce. Oh God, that girl. Without knowing the fact that she was a vampire. उनको भी नहीं पता था कि वो वैम्पायर है, गिर गए प्यार में। लो, पर शो their mom was dead because of non-curable disease. मतलब जो स्टेफन और डेमन की मम्मी थी, मम्मी जी, मतलब एलिना की मम्मी जी या कैरोलाइन की मम्मी जी, धीरे धीरे सब पता चलेगा कैरोलाइन कौन है। हाँ। Previously on the Vampire Diaries. That Mama Salvatore was a vampire. How Stephen get these ripper things? So it's interesting because you just don't know कौन कब कहाँ से आएगा and in what phase also. Like we see that Stephen killed his father after turning into vampire. Because his father was merciless. Merciless is not the correct word for him. He is more of a ruthless kind of papa. वो नहीं बस्सी की वीडियो में आया था, कुछ लोग पैदा ही होते हैं बाप बनने के लिए, वो उनमें से था। Killed both the brothers while having vampire blood in their system. और ये वैम्पायर ब्लड किसका था? कैथरीन पियर्स का, जिससे वो दोनों प्यार करते थे।
And after some episodes, we'll come to know that in Mystic Falls, not only vampires are there, but also the other natural beings like witches and werewolves. Now the Mayer family, aka Lockwood family. At first, I thought that they are humans, but then I came to know that they are the threat to vampires. A vampire को क्या threat हो सकता है? They are also supernatural. एक चीज है जो vampire को मार सकती है, और वो क्या है? A werewolf bite. Or a threat to Salvatore brothers and to all the vampires, except the original family. आप लोगों को लग रहा है ये कहाँ से नई नई चीजें ला रहे हैं? कैरोलाइन, विचेस और ओरिजिनल फैमिली. माय पर्सनल फेवरेट इज कैरोलाइन, aka Candace King. She was a vampire, not human. Yeah, I mean, what is not good about her to like? I seem to be on a bit of a roll. Why don't you pick on someone your own size? कौन ऐसा है जिसने मतलब वैम्पायर डायरीज देखा और कैरोलाइन के बारे में मतलब ये ना बोला हो कि आई लव कैंडिस किंग. ओ everyone on the show likes Caroline and vice versa, we can say. Caroline likes every boy on the show. Indeed. Whether it is Tyler Lockwood, Matt Donovan के साथ भी. Caroline likes every boy on the show, but her true love was Stefan. Yes. After all the ups and downs, they both chooses each other. And in the last, about Catherine, she's the baddest of all. You can say she's the baddest. बोलेंगे हमें तो लगता है वैम्पायर डायरीज में मोस्ट ऑफ द कैथरीन पियर्स ने ही चेंज किया था सबको. पता नहीं उसके क्या ही प्रॉब्लम थी सबके साथ. गलत उसको भी नहीं कह सकते हैं. शी वाज सच अ सर्वाइवर. जब वो टर्न हुई थी वैम्पायर में तब उसने भी बहुत कुछ देखा था, तो उसको भी मतलब ऐसा है ना कि वैम्पायर डायरीज इज ऑल अबाउट कि पहले कोई विलेन आता है आप उसको हेट करो क्योंकि ये बैड गाय, ही इज अ बैड गाय, ही इज अ बैड गाय. फिर जब तक वो एपिसोड एंड होगा तब तक आप उसके फैन हो जाओगे, उसकी स्टोरीज लगाओगे इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में लिखोगे. लाइक यही है इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है इस सीरीज का कि इसमें इसके जो विलेंस है ना आप उनसे भी प्यार करने लगोगे. वेदर शी इज कैथरीन पियर्स और काई पार्कर द साइकोपैथ. काई पार्कर एज यू नो द साइकोपैथ किलर जो मतलब अपने ही घर वालों को मारने पे तुला हुआ था. लाइक बट उसका भी फैन बेस एक नेक्स्ट लेवल पे है. साइरेंस मतलब आए थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब दे आर द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ये सोचिए जो खुद डेविल से डील करके बैठे हो क्या ही होंगे. ठीक है चलिए. मैन बाय टॉकिंग अबाउट विचेस, हाउ कैन आई नॉट रिमेंबर द सेवियर ऑफ ऑल, बॉनी बेनेट. God, she saved everyone's life. Like seriously, everyone's. सबकी लाइफ बचाने वाली सिर्फ एक थी, बॉनी बेनेट. और वो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अभी तक विचेस वाले शोज और ये सारे सुपरनैचुरल, शी वाज द मोस्ट पावरफुल विच ऑफ ऑल द टाइम. लाइक सीरियसली हेलफायर, लाइक जो पूरे टाउन को खत्म करने की मतलब पावर रखती थी हेलफायर, उससे वो बॉनी बेनेट अकेले लड़ी. अकेले उसने स्टेफन को भी बचा लिया लास्ट में हेलफायर से. बट ऐसा नहीं था क्योंकि जो कैथरीन थी, फिर से कैथरीन, वो भी लास्ट में आके उसने ही सारा कुछ खेल बिगाड़ दिया. कैथरीन ने फिर से आई. तो अब वन हैज टू मेक श्योर कि हेलफायर के साथ कैथरीन भी चली जाए, वहां से मर जाए. तो स्टेफन ने चूज किया कि हम जाएंगे. कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे पास अभी एलिना है, ये वो जो भी था. कहानी बहुत लंबी, आप शो देखेंगे तो भी समझ में आएगा. ऐसे ही थोड़ी हमने पूरे 6 महीने बर्बाद किए, थोड़ा शो भी देखेगा. हम तो सिर्फ एक ओवरव्यू देने आए हैं आपको. आउट ऑफ 8 सीजन माय पर्सनल फेवरेट. गेस है क्या होगा पर्सनल फेवरेट? लाइक कोई गेस कैसे लगा सकता है यार, कैसी बात है. द ओरिजिनल फैमिली आती है जब. These are the names of the original family. Nicholas. Elijah. And Rebecca. These images tell a story. Sounds so normal. It was. Is that the Klaus? Something's wrong. And one of the last moments on the sun for life, and the ancient white oak tree drove his sword through our hearts. We had to drink more blood to complete the ritual. ओरिजिनल फैमिली क्या है? The predatory species was hunger. We stick together as one, always and forever. फर्स्ट ऑफ देयर ओन काइंड. मतलब वो पहले वैम्पायर थे,
और उनमें से मेरा फेवरेट, मतलब उनमें से क्या, मेरा पूरे शो में माई मोस्ट फेवरेट इज क्लाउस माइकल्सन। ही इज द वन ओरिजिनल बैडएस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है वेयरवुल्फ और वैम्पायर दोनों, मतलब सेम एट अ टाइम। कैसे? उसकी मम्मी का नाम क्या था? एस्थर माइकलसन। उसका चक्कर था किसी से, उसी चक्कर में चक्कर हो गया और चक्कर बन गए क्लाउस। उसके मतलब बाय बर्थ ही वाज अ वेयरवुल्फ बट हर मदर मैजिक टर्न्ड इनटू अ वैम्पायर। जैसा कि मतलब हाइब्रिड था, वो सबके लिए एक थ्रेट था, क्योंकि ओरिजिनल, पहली बात तो सबसे पहली चीज थी कि ओरिजिनल फैमिली को आप नहीं मार सकते हैं, मार ही नहीं सकते, सिवाय एक चीज के, व्हाइट ओक स्टेक। ये भी आपको पता चल जाएगा। ये व्हाइट ओक स्टेक एक वर्ड है, ये बहुत ज्यादा आप उसमें देखेंगे, बहुत Ancient white oak tree. व्हाइट ओक स्टेक, सायर, डॉपलगैंगर, ये सब सुन सुन के अपना दिमाग खराब हो जाएगा। ये है क्या है? डॉपलगैंगर बेसिकली ये वेरिएशन और डबल ऑफ अ लिविंग पर्सन। कहते हैं ना कि दुनिया में 7 लोग होते हैं एक तरह के, तो आप वही कह सकते हैं कि किसी का डॉपलगैंगर जैसे मेरे जैसे दिखने वाला अगर कोई हो तो प्लीज बता दीजिएगा, हम मिल लेंगे, मतलब भाई मिले में पिछड़े हुए। तो एलिना जो थी वो कैथरीन की डॉपलगैंगर थी, और जो क्लाउस था उसको वेयरवुल्फ वाला जो साइड था उसका, मतलब हाइब्रिड वाला साइड था, उसकी मदर ने उसको कास्ट करके अबैंडन कर दिया था बिकॉज ऑफ कि वो बहुत ज्यादा खतरा हो गया था सबके लिए। तो उसको वापस से अपना हाइब्रिड नेचर लाने के लिए डॉपलगैंगर का ब्लड चाहिए था। और उस पहले शो में आपको यही लगेगा जब तक क्लाउस आएगा कि एलिना वाज द ओनली डॉपलगैंगर इन द शो। Hey humans, yes, human कहने में अजीब लग रहा होगा, वेम्पायर डायरीज देखने के बाद आपको ऐसा ही फील होगा कि दिस इज सो नॉर्मल मैन। एटलीस्ट thank God vampires and werewolf are only just a concept in your life. Okay, no problem. इसको देखो 8 seasons, this is one of my favorite series। और इसको देखने के बाद the originals miss मत करिएगा। एंड इसका 3rd part भी है, the legacies, बट वो बहुत टाइम बाद आएगा, तो पहले इसके 8 seasons कंप्लीट करिए, ओरिजिनल्स के 5 seasons कंप्लीट करिए, एंड देन देयर आर 3 seasons so far of legacies and I'm still watching it। अभी 14th episode निकला है, 3rd। I am still waiting for the next episode। So thank you for watching our videos and keep liking, sharing it। Bye bye human।